اگر آپ کی قسمت کی لائن بڑی شاندار ہو اور پھر سیٹرن ماؤنٹ پر یہاں سے اس کو کوئی لائن ایسے کاٹ دے تو یہ روڈ ایکسیڈنٹ کی طرف بھی بات جا سکتی ہے، کوئی بدنامی بھی آپ کو مل سکتی ہے، آپ کی میرج بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر میل کے ہاتھ میں ہو تو روڈ ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جاب ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ انسان کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے، یا انسان کسی رشتے پر اعتبار کرتا ہے تو کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے تو آپ کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو بالکل پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کوئی بڑی رقم ادھار بھی نہیں دینی چاہیے۔ جب بھی یہ رقم ادھار دیں گے تو ان کا وہ پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پارٹنرشپ سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں ابھی ان کا ایک کورٹ کیس چل رہا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں تو سن لائن ان کی کافی بہتر ہے، یہاں پر بھی ایک ٹرائی اینگل کا سائن بن رہا ہے، یہاں سے بھی ایک لائن اوپر اٹھی ہے، پھر یہ یوں اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ سائن بتا رہے ہیں کہ کورٹ کیسز میں جو ابھی ان کا کورٹ چل رہا ہے، سن لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ ٹرائی اینگل ان کو کورٹ کیس میں فتح دلوا سکتا ہے، اور ان کو امید ہے کہ یہ کورٹ کیس ہاریں گی نہیں، کورٹ کیس یہ جیت جائیں گی، زیادہ چانسز یہی ہیں۔ لیکن دیکھیں پھر بھی غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نے تو ایک اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ تو لائنیں یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لائن کورٹ کیس کی ہوتی ہے، تو بالکل کورٹ کیس ان کے ساتھ بنا ضرور ہے، لیکن امید ہے کہ کورٹ کیس یہ جیت جائیں گی، کیونکہ ابھی ان کی ایج 55-60 کے قریب ہے، تو ابھی ان کا لائنیں بڑی اچھی ہیں، تو امید ہے کہ یہ کیس ون کر جائیں گی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں لکی ایم کا سائن بن رہا ہے نا، تو دولت تو آپ کے پاس آتی رہے گی۔ اب لکی ایم کا سائن کیسے بنتا ہے؟ یہ زندگی کی لکیر ہے، یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے، یہ آپ کی دل کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے۔ لکی ایم کا سائن کیسے بنا؟ یہ آپ کی زندگی کی لکیر، یہ آپ کی دماغ کی لکیر، یہ آپ کی قسمت کی لکیر، اور یہ آپ کی دل کی لکیر۔ تو آپ دیکھیں کتنا پیارا ایم کا سائن بن گیا۔ اب ڈبل ایم کا سائن کیسے بنے گا؟ بالکل سمپل ہے، یہاں سے شہرت کی لائن اگر نکلتی ہے اوپر تک جاتی ہے تو اب آپ کا ڈبل ایم کا سائن بن جائے گا۔ یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے، یہ دل کی لکیر، یہ شہرت کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر، اور پھر یہ قسمت کی لکیر۔ تو دیکھیں یہاں پہ ان کا ڈبل ایم کا سائن بن گیا۔ تو اگر آپ کا سنگل ایم بنے یا ڈبل ایم بنے، آپ لکھ پتی سے کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ بڑا مبارک سائن ہے یہ۔ پاس لکی منی ٹرائی اینگل کا سائن بن رہا ہے تو ساری زندگی پیسہ آپ کے ہاتھ میں ختم نہیں ہوتا۔ اب یہ منی ٹرائی اینگل سائن بنتا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بزنس کی لائن کے ساتھ مل کے بنتا ہے اور دماغ کی لائن کے ساتھ مل کے بنتا ہے۔ تو یہ جناب دیکھ رہے ہیں، یہ بزنس کی لکیر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنا زبردست ان کے ہاتھ میں یہ لکی منی سائن، منی ٹرائی اینگل سائن یہ یلو کلر کا بن گیا۔ قسمت کی لکیر، دماغ کی لکیر، اور بزنس کی لکیر۔ تو یہ اگر ٹرائی اینگل، منی ٹرائی اینگل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو زندگی بھر روپیہ پیسہ آپ کے پاس رہے گا، سیونگ ہوتی رہے گی، پیسہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اور بینک میں آپ کا اچھا خاصا پیسہ موجود ہوگا اگر آپ کے ہاتھ میں یہ منی ٹرائی اینگل موجود ہے۔ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی میرے ہاتھ میں روحانیت کے سائن ہیں، تو بالکل جناب اگر آپ کے ہاتھ میں یوں ایک رنگ بن رہا ہے، یہ رنگ آف جوپیٹر، یہ جوپیٹر کا ابھار ہوتا ہے، اس پہ اگر آپ کو یہ سیدھی لائن بھی نظر آتی ہے یا یہ گولائی میں یہ رنگ نظر آتا ہے تو یہ آپ کے اندر بے تحاشا روحانیت پیدا کرتا ہے۔ رنگ آف سیٹرن یہ انسان کے اندر تھوڑا سا مایوسی اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے، لیکن آخر میں یہ انسان کو روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے گرڈل آف وینس، یہ ان دو انگلیوں کے بیچ سے شروع ہو کے ان دو انگلیوں کے بیچ میں یہ کوس بنتی ہے، یہ بھی آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اینڈ پہ یہاں پہ کراس کا سائن ہوتا ہے دل اور دماغ کی لائن کے درمیان، یہ بھی آپ کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کوس بنتی ہے، اسے خط وجدان کہتے ہیں۔ اگر یہ کوس بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو 100% آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا روحانی پاور رکھی ہے۔ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش سائن، یعنی کہ یہ آپ کی بزنس کی لکیر اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اب مون ماؤنٹ سے ایک لائن نیچے کی طرف آئے اور ایک لائن یوں نیچے کی طرف آئے تو دیکھیں کتنا خوبصورت یہ منی ٹرائی، یہ فش کا سائن بن گیا۔ تو آپ کا K2 ماؤنٹ پہ اگر یہ فش کا سائن ہے اور پھر یہ بزنس کی لائن اور قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا ہے
تو یہ بزنس کو بھی طاقت دے گا، یعنی کہ آپ کا بزنس بڑا گروم کرے گا اور آپ کی لک آپ کا بڑا ساتھ دے گی. اور اگر آپ انتہائی خوش قسمت ہے، یہاں پہ آپ کی شہرت کی لائن بھی نکلی ہوئی ہے اور پھر وہ اوپر جا کے 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہو رہی ہے، پھر اس کے ساتھ یہ ٹرائی اینگل کا سائن بھی بن رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی بار بار لاٹری بھی لگ سکتی ہے، بے تحاشا دولت ملتی ہے اور زندگی میں ایسے لوگوں کو بہت عروج ملتا ہے اور ایسے لوگ بہت زیادہ لکی ہوتے ہیں. شادی کی لائنوں میں کٹ ہوں، یہ دیکھیں یوں کٹ آ رہے ہیں، تو جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا. دوسری لائن بھی بڑی کمزور سی ہے تو دوسرا ریلیشن بھی ان کا ویک ہے، بریک ہو جائے گا. اور اگر ہم تھرڈ دیکھیں تو تھرڈ میں بھی یہ شادی کی لائن 2 شاخہ ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے شادی میں ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہوتا کہ شادی کی لائن 2 شاخہ ہو گئی ہے تو لازمی ڈائیورس ہو جائے گی، لیکن میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، کبھی کبھی سپریشن ہو جاتی ہے، ان کے 6 ماہ بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کے چلی جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، تو آنا جانا لگا رہتا ہے. تو یہ 2 شاخہ جو ہوتا ہے یہ آپس میں دوری کا بتاتا ہے. سوچوں میں بھی دوری ہو سکتی ہے، جسمانی دوری بھی ہو سکتی ہے، جسمانی تلک نہیں پھر رہتا. یہ ہوتا ہے انگوٹھے کا فرسٹ پول، یہ بتاتا ہے انسان کی ول پاور کا کہ آپ ارادے کی کتنے مضبوط ہوں گے. جتنا یہ لمبا ہوگا اتنا آپ بڑی زبردست، بڑی اسٹرانگ ول پاور ہوگی، مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوں گے. لیکن اگر یہاں پر آڑی ترچھی لائنیں بھی موجود ہوں تو پھر کیا ہوگا، بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کی ول پاور کمزور بھی ہوگی، جن کی تھوڑی مایوسی، تھوڑی جو ہے نا وہ ہمت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ فلور پہ بھی دیکھیں یہاں پر بھی لائنیں زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو بہت زیادہ اسٹرگل، بہت زیادہ مشکلات ان کو دیکھنی پڑیں گی. سیکنڈ فلور پلاننگ کا ہوتا ہے تو ان کی پلاننگ بھی بڑی ڈسٹرب ہوگی، یعنی کہ جو بھی منصوبے بنائیں گے ان پر عمل کرتے ہوئے ان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اور کامیابیاں آسانی کے ساتھ نہیں ملیں گی. اگر خوبصورت آنکھ بنی ہو نا تو آپ کے پاس دولت آتی ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے، زندگی میں آپ کو اچھے رشتوں کا ساتھ بھی ملتا ہے. لیکن دیکھیں یہ تھوڑی سی بالکل شروع میں سٹارٹ نہیں ہو رہی، پہلے یہ ایک سنگل لائن ہے، تو اس کو جہاں پہ یہ سنگل لائن ہوگی وہ ٹائم آپ کا مشکل ہوگا، یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اپنی زندگی کو کاؤنٹ کر لیں. تقریباً اگر آپ کی 0 سے لے کے یہاں تک 80 سال ایج بنتی ہے تو تقریباً جو زندگی کے پہلے 20 سال ہوں گے نا وہ آپ کے مشکل ہوں گے. ٹھیک ہے، 20 سال کی عمر کے بعد آگے پھر آپ کی یہ آنکھ بڑی زبردست بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال کی عمر کے بعد آپ کو اچھے دوست ملیں گے، اچھے سہارے ملیں گے اور آپ کی زندگی میں قسمت آپ کا ساتھ دے گی، آپ کی اچھی جاب ہو جائے گی، آپ کا اچھا بزنس ہوگا اور بڑھاپا بھی آپ کا بڑا اچھا ہوگا، بڑھاپا آپ کا خوشحالی میں گزرے گا. فیمیل کا پام ہے. اب یہاں پہ لائنیں کس طریقے سے بنی ہوئی ہیں، زندگی کی لائن یہاں پہ کٹ آئے ہیں، پھر یہ لائن چلی ہے، یہاں پہ یہ جزیرہ سا بنے، یہاں پہ جزیرہ سا بنے، یہاں پہ جزیرہ سا بنے، تو یہاں سے لے کے یہاں تک ان کی ایج بن جاتی ہے تقریباً 25 سال. تو بچپن سے لے کے 25 سال کی عمر تک ان کی نہ تو ہیلتھ اچھی تھی اور ان کی امی ابو کی زندگی میں بھی مشکلات تھی، پرابلم تھی، ٹینشنیں تھیں. تو بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ ٹینشنیں ایسے لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں. اگر آپ کی زندگی کی لائن شروع میں ڈسٹرب ہو، اس پر جزیرے بنے ہوں یا اس میں ایسے کٹ آ رہے ہوں، تو ایسے بچوں کا بچپن جو ہوتا ہے وہ بڑا کافی ادھورا پن پایا جاتا ہے، والدین کی پراپر جو توجہ ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی اور میاں بیوی کی زندگی میں بھی پرابلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ بہت ڈسٹرب رہتا ہے. دیکھیں یہ ہے ان کا مشترکہ ابھار، یہ سارا مشترکہ ابھار کا ایریا، یہ شہادت کی انگلیاں. ٹھیک ہے، اس پہ اب اگر یہ اس طریقے سے یہ لائنیں موجود ہیں یوں، تو یہ رنگ آف جوپیٹر اس کو کہتے ہیں. یہ اگر آپ کے ہاتھ میں ڈبل ہے یا ٹرپل ہے تو جتنا یہ سنگل ہوگا تب بھی آپ کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی میں اضافہ ہوگا، اور اگر یہ ڈبل ہوگا تو یہ اس کی پاور کو بڑھا دے گا. آپ مذہب کی طرف بہت زیادہ مائل ہوں گے. ایسے لوگ مذہب کی طرف دیکھے گئے ہیں، روحانیت میں دلچسپی لیتے ہیں، تصوف میں دلچسپی لیتے ہیں، تزکیہ نفس کی طرف مائل ہوتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، روحانی عمل بن سکتے ہیں، اسٹرالوجی، نیمرولوجی ان علوم میں بھی دلچسپی لیتے ہیں. تو یہ بڑا مبارک
और रूहानियत के लिहाज से बड़ा अच्छा साइन है ये रिंग ऑफ जुपिटर। देखिए, अगर जिंदगी की लकीर पे छोटे छोटे कट हो, ये राहु लाइनें हैं। ये अब राहु लाइनों को आप पहचान लें अच्छे तरीके से। ये लाइनें कट है, इस लाइन में कट है, फिर इस लाइन में कट है। अब ये लाइन जितनी ज्यादा लंबी होगी ना, इतना आपका बड़ा नुकसान करेगी। आपकी अगर फीमेल के हाथ में ये लाइनें हो तो उसके अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, ससुराल में जाके बड़े धोखे मिलते हैं, लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिलता, इनके ऐसी फीमेल की जिंदगी में सुख नहीं होता। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 50 साल एज बन जाती है इनकी, तो बचपन से लेके 50 साल की उम्र तक इनको बहुत कम सुकून मिला होगा। बहुत बड़ी 3-4 बड़ी मुसीबतें भी इनको देखनी पड़ी होंगी, और ऐसी फीमेल की शादी भी बड़ी डिस्टर्ब रहती है। ये होता है आपका वीनस माउंट, ये सारा वीनस का एरिया है। अब अगर यहाँ पे बारीक बारीक लाइनों का आड़ी तिरछी लाइनें आपको नजर आती हैं यूं, तो ये बहुत ज्यादा ज़हनी टेंशनों का बताती हैं। बाज दफा टेंशन इतनी होती नहीं है जितना ये लोग अपने सर पे मुसल्लत कर लेते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे लोग टेंशन लेते हैं या लेती हैं जिन फीमेल के हाथ में वीनस मोड पर ये आड़ी तिरछी लाइनें हो, और ज़िंदगी में थोड़ी सी रुपए पैसे की कमी रहती है, ख्वाहिशात इनकी अधूरी रहती हैं, ख्वाहिशें ठीक तरीके से ठीक टाइम पे पूरी नहीं होती, कभी कभी मोहब्बत में नाकामी होती है और मोहब्बत का सुख नहीं मिलता, शादी में भी मसले बने रहते हैं और शादी में भी प्रॉब्लम का सामना ऐसे लोगों को ज़रूर देखना पड़ता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात ऐसे लोगों की ज़िंदगी में देखी गई हैं। अगर आपकी दिमाग की लकीर यहाँ से स्टार्ट लेती हुई बिल्कुल मून माउंट के नीचे तक आ जाती है, तो ये लाइन जो होती है ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ नहीं गुजारने देगी। अब क्या होगा, आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें बढ़ जाएंगी, आपको लिखने वाला काम अच्छा लगेगा, या तो आप पेंटिंग की तरफ चले जाएंगे, या आप नॉवल निगार बन सकते हैं, ड्रामा निगार बन सकते हैं, इनके आप राइटर बनेंगे, या कोई ना कोई शोबिस से रिलेटेड आप काम करेंगे, आप एक्टिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मून की तरफ जब आपकी दिमाग चली गई है तो टोटली आप इमोशनल किस्म के इंसान बन जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आप जज्बाती होंगे, बहुत ज़्यादा आप हसास होंगे, सेंसिटिव होंगे। तो ये साइन इस चीज़ का बताता है, और ऐसे लोग दिमागी काम करना पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें इंतहा की होती हैं। कि जब आपका मून माउंट बड़ा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, और इसी मून माउंट पे एक बड़ी स्ट्रांग लाइन किस्मत की यहाँ से स्टार्ट हो और ये सीधी सैटर्न माउंट तक चली जाए, तो ये आपका सारा मून का एरिया, आप किस्मत की लकीर मून के बिल्कुल सेंटर से बड़े नीचे से स्टार्ट लेगी, तो ये 100% आपको बाहर के मुल्क सेटल करवा देगी। और अगर यहाँ से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ेगी, इसको काटे नहीं, अगर ये काट देगी तो कोई इंसान आपकी जिंदगी में आएगा और वो आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ लेगा। इनकी ये शादी के टूटने का साइन है, मंगनी के टूटने का साइन है, किसी रिलेशन के ब्रेक होने का साइन है। तो कामयाब रिलेशन वही होगा अगर वो लाइन किस्मत की लाइन के साथ मिल के ऊपर की तरफ चली जाए। तो ऐसे लोगों की आमतौर पर बाहर के मुल्क शादी होती है, और कभी कभी ये लव मैरिज भी हो सकती है। फॉरेन सेटलमेंट के कुछ पावरफुल जो है ना वो साइन, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो फिश साइन है वो इस तरीके से भी बना हो सकता है आपकी जिंदगी की लाइन के साथ, ये फिश आपकी अंदर की तरफ बन रही हो वीनस माउंट के। फिश साइन चाहे अंदर की तरफ बने या बाहर की तरफ बने, ये आपको यूं भी बन सकते हैं, ये आपको बाहर के, ये आप फिश बाहर की तरफ बनी हुई है, तो दोनों फिशें आपको बैरून मुल्क लेके जरूर जाएंगी। और इसी तरह अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन यूं आपको नजर आता है इस तरीके से, ये फिश भी आपको ट्रैवल करवाएगी। और अगर किस्मत की लाइन के साथ मून माउंट से कुछ लाइनें ऐसे टच हो रही हैं, तब भी आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। और अगर मून माउंट से कुछ लाइनें किस जिंदगी की लाइन के साथ टच हो रही हैं, तब भी आप बैरून मुल्क ज़रूर सफ़र करेंगे। दिल की लकीर कटी फटी हो, टूट टूट के चल रही हो, पीछे से ऐसे शाखें निकली हो, और फिर ये ऐसे डबलिंग होके यूं डबल होके चले, जजीरे भी बने,
और फिर इसमें ऐसे कट भी आ जाए। तो अगर किस्मत की आपकी दिल की लकीर टूट टूट के चल रही है और फिर अल्लाह ना करे यहाँ से दिमाग की लकीर से कोई लाइन दिल की लाइन को ऐसे काट भी देती है, तो ऐसी फीमेल की शादी नहीं चलती। पहली शादी भी ब्रेक हो सकती है, दूसरी शादी भी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है, और ये आप इनकी शादी की लाइन देख भी सकते हैं। पहला रिलेशन भी इनका ब्रेक हुआ है और दूसरा रिलेशन में भी मसले बनेंगे। तो यहाँ से ही हम दिल की लकीर से ही हम शादी की लाइन को भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि पहले आपने सिर्फ शादी की लाइन से शादी के बारे में बताना होता है, बल्कि शादी का सारा नक्शा यहाँ पे बना होता है, हथेली की लाइनों पे। किसी फीमेल की जिंदगी की लाइन बड़ी कमजोर हो, उस पर राहु लाइनें ऐसे काट रही हो, ठीक है जी, दिमाग की लाइन बड़ी कमजोर हो और उसमें से कुछ शाखें ऐसे इसको ऐसे काट रहे हैं दिमाग की लकीर को, और यहाँ से कुछ लाइनें यूं बैरूनी मंगल तक भी पहुंच जाए, और दिल की लाइन जो है वो जंजीर नुमा हो, तो शादी जो है वो बुरे तरीके से टूटेगी, बल्कि कोर्ट में जाके डाइवोर्स होगी। यानी कि कोर्ट केस भी बनेगा, चाहे आपको खुला लेना पड़े। और यहाँ पर आप देख लें शादी की लाइनें, यहाँ पे 2-3 लाइनें नजर आ रही हैं और वो शादी की लाइनें अच्छी हालत में नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ना इनकी पहली शादी ठीक से चलेगी और सेकंड मैरिज में भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप बहुत गौर से देखेंगे ना, अगर कोशिश करेंगे यूं बनाने की, तो एक लाइन यूं निकल के यूं जा रही है, एक लाइन यूं निकल के यूं जा रही है, और ये किस्मत की लाइन को काट रही है। तो कम से कम 5 कोनों वाला तो स्टार बन गया है, लेकिन ये स्टार बिल्कुल भी इनको कोई फायदा नहीं देगा। ये स्टार इस वक्त उस वक्त तक अच्छा माना जाता अगर ये यहाँ पे खूबसूरत स्टार बनता। क्योंकि ये जो शाख इसने दिल की लाइन को काट दिया है, इसने किस्मत की लाइन को काट दिया है, तो अब ये स्टार साइन नहीं रहा, बल्कि ये राहु लाइनें किस्म की बन जाएंगी, जो इनकी किस्मत को भी खराब करेंगी, इनकी मैरिज में भी मसले बनेंगे, और जिंदगी में ये स्टार साइन सन माउंट पे इनको बदनामी की तरफ लेके जाएगा और किसी स्कैंडल की तरफ लेके चला जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। देखिए, अगर आपकी दिल की लाइन टूट टूट के चल रही है, उसमें ऐसे जजीरे से भी बन रहे हैं, जजीरे से भी बन रहे हैं, और दिल की लाइन टूट रही है, और आखिर में इसका झुकाव नीचे की तरफ चला जाता है, यहाँ से कुछ शाखें नीचे की तरफ चली जाती है, या कभी कभी यहाँ से लाइन अंदरूनी मंगल की तरफ चली जाती है। तो जूं जूं आपकी एज गुजरती है तकरीबन 50 के करीब जाके, बल्कि 40 के बाद ही आपको अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती हैं वो बुरे तरीके से आपकी वो तवक्कुआत डैमेज होती हैं। आपके रिश्ते आपको चीट करते हैं, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ होता है, और ओल्ड एज में आप बिल्कुल तनहा रह जाते हैं और आपको ना ठीक तरीके से औलाद का सुख मिलता है, ना आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ज़्यादा सुकून मिलता है, और आपके रिश्ते भी खुदगर्ज होते हैं, मतलबी होते हैं, अगर आपके हाथ में दिल की लकीर ये वाला सीन दिखा रही है आपको। तो देखिए, दिल की लकीर से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरे और दिल की लाइन में जजीरे भी बने हो, दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे यूं, तो बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ होती है। जज्बाती फैसले करते हैं, और कभी कभी गुस्से में आके अपनी शादी को आप बर्बाद कर लेते हैं। अपने जो बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन होते हैं वो रिलेशन आप तोड़ लेते हैं, और इसी तरह ये आपकी दिमाग की लकीर है। अगर दिमाग की लकीर से कुछ लाइनें निकल के ऊपर की तरफ दिल की लाइन को काट देती हैं यूं, तो ये भी बताती हैं कि आप जज्बाती फैसले करेंगे, और उन जज्बाती फैसलों के नतीजे में आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो यहाँ से जो लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही होती है ना, चाहे वो किस्मत की लाइन को काट दें या शोहरत की लाइन को काट दें, तो ये लाइनें भी राहु लाइन के तौर पर काम करती हैं, जो हमें दुखों की तरफ, टेंशनों की तरफ लेके चली जाती हैं, और हमारा रुपये पैसे का भी नुकसान होता है, और कभी कभी हमारा रिश्ता भी टूट जाता है। रूहानियत के लिहाज से ना ये वाला जो हाथ है ना, इसको मैं सबसे बेहतरीन मानता हूँ। एक तो ऐसे लोगों की उंगलियां भी नुकीली होती हैं, रूहानियत जिनके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। ऐसे लोग थोड़े से जलाली नेचर के भी होते हैं, थोड़े जज्बाती ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इनकी खूबसूरत आंख बनी होगी, ये भी रूहानियत का साइन है। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत होगी, और इस पर यहाँ पर आपको रिंग ऑफ जुपिटर नजर आएगा। यहाँ पे क्रॉस का साइन हो सकता है, यहाँ पे रिंग ऑफ सैटर्न हो सकता है, यहाँ पे ये गर्डल ऑफ वीनस हो सकता है, ठीक है जी, ये कोसेजारा हो सकती है।
दिमाग की लाइन और दिल की लाइन के बीच में यहाँ भी एक छोटा सा क्रॉस का साइन, ये भी आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करेगा। और ये जो होता है खत वजदान, ये इस तरीके से होता है। ये या तो बादशाहों के हाथों में होता है या जो अल्लाह के नेक वली होते हैं उनके हाथ में ये रूहानियत का पावरफुल साइन देखा गया है। ये बहुत कम आपको हाथों में नजर आएगा। ये जो पाम है, इनका कैरियर कब शुरू होगा? बिल्कुल इनको ज़िंदगी में शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, इनके 20 साल की उम्र तक भी बड़ी मुश्किलात हैं और उसके बाद बुढ़ापे में भी इनको बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सेहत के हवाले से देखनी पड़ेंगी। और जो इनका कैरियर का आगाज़ होगा वो तकरीबन आप ये कह लें कि 28-30 साल की उम्र में ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से कोई काम शुरू करेंगे, या कोई ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन निकलती है तो आप कोई जॉब आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत से मिलती है, इनके आप अपना कैरियर खुद बनाते हैं और आप अपने रिश्तों के साथ भी जुड़े रहते हैं। फिर यहाँ पे का ये काम खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से जो लाइन है आगे ये इनके कैरियर को लेके चलेगी। तो बिल्कुल ज़िंदगी में इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 35 से 40 साल की उम्र में भी मुश्किलात देखेंगे, लेकिन आगे अल्लाह करम करेगा। आगे इनकी शोहरत की लाइन बड़ी पावरफुल है तो अल्लाह ताला इनको बुढ़ापा बड़ा अच्छा देगा और दौलत की कमी भी इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, आपको ज़िंदगी में दुख कब मिलते हैं? वो कौन सा साइन होता है जो बताता है कि आपका दिल भी टूटेगा और दिल बुरे तरीके से आपका डैमेज भी होगा? एक तो दिल की लाइन में यहाँ पे आपको कट नजर आएंगी, और दूसरी बात ये कि दिल की लाइन से यहाँ से लाइनें, दिल की लाइन नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दिल की लाइन नीचे की तरफ झुक गई है। अब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर आएगी, बहुत ज़्यादा ये जज्बाती हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा गुस्से में आएंगी और अपने काम खराब कर लेंगी। तो दिल की लाइन का नीचे की तरफ झुकना, और स्पेशली ये अंदरूनी मंगल तक अगर दिल की लाइन से ब्रांचें यहाँ तक पहुँच जाए ना, तो ऐसे लोगों की मैरिज में कोई सुख नहीं होता, और ऐसे लोगों का जो ओल्ड एज होती है उसमें भी इनको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं। तो देख लें किस्मत की लाइन को, जब ये लाइनें इस तरीके से क्रॉस काटती हैं तो इंसान का बुढ़ापा भी थोड़ा सा दुखों का शिकार हो जाता है। जब आपका अंगूठा थोड़ा छोटा भी हो ना, और अंगूठे का ये जो जॉइंट है ये लचकदार हो, अंगूठा आपका पीछे की तरफ मुड़ जाए ज़्यादा, तो ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत की कमी होती है। ऐसे लोगों के अंदर जो अच्छी बात ये होती है कि ऐसे लोग हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, और ऐसे लोग कभी कभी गलत रास्तों की तरफ भी निकल सकते हैं कि एडिक्शन, किसी भी नशे की एडिक्शन इनको हो सकती है, कोई बुरी आदत इनके अंदर आ सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। 100% इनको दुख तकलीफें देखनी पड़ेंगी जब आपकी अंगूठे पे यहाँ पे इस तरीके से 2 लाइनें बन रही हो ना, इनके यहाँ पे एक आंख बनती है। अगर ये आंख ना बन रही हो, यहाँ पे 2 लाइनें आपको नजर आए, तो ऐसे लोगों को चीटिंग का सामना जरूर करना पड़ता है, और अच्छी खासी चीटिंग ऐसे लोगों के साथ हो जाती है, और बहुत ज़्यादा टफ टाइम ऐसे लोगों को देखना पड़ता है। रिश्तों का साथ नहीं मिलता, गलत लोगों पर एतबार करते हैं, पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप में धोखा खा लेंगे। असल में ऐसे लोगों की खामी ये होती है कि ये दूसरों पर जल्दी एतबार कर लेते हैं। तो जब आपकी अंगूठे पे आंख ना बन रही हो, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर ये पार्टनरशिप करें भी तो फिर बड़े ध्यान से सोच समझ के किसी अच्छे इंसान का इंतखाब करें, और हर बंदे पर आंखें बंद करके ये बिल्कुल भी एतबार ना करें तो इनके लिए बेहतर होगा। देखिए, काला तिल कभी भी हाथ में अच्छा नहीं माना गया। काला तिल अगर यहाँ पे भी हो या किस्मत की लाइन के ऊपर हो, इस जगह पे हो, लाइन के ऊपर हो, दिमाग की लाइन के ऊपर हो, दिल की लाइन के ऊपर हो, दिल की लाइन के ऊपर होगा तो बीमारी, इनके हार्ट से रिलेटेड बीमारियां देखनी पड़ेंगी। किस्मत की लाइन के ऊपर होगा या यहाँ पे होगा दिमाग की लाइन के नज़दीक, तो ज़हनी टेंशन भी मिलेगी और रुपए पैसे का लॉस भी होगा। कभी कभी ये तिल जो होता है ये शादी को भी ब्रेक करने की तरफ लेके चला जाता है, शादी में प्रॉब्लम बनते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी अगर ये सन लाइन के ऊपर हो तो आपके साथ कोई जिनसी स्कैंडल का सामना आपको करना पड़ सकता है, रुपए पैसे का आपका नुकसान हो सकता है, कोई झूठा ब्लेम आप पे लग सकता है। तो इस लिहाज से इसको बिल्कुल भी काले तिल को अच्छा नहीं माना गया। ये होता है आपका वीनस माउंट। वीनस माउंट पे अगर यहाँ पे काला तिल हो तो ये काला तिल जो है आपको बांझपन की तरफ लेके जा सकता है। इनकी औरत के हाथ में होगा तो उसे कोई ना कोई अंदरूनी जो जनाना नक्स होते हैं
कोई ना कोई उसके अंदर फॉल्ट होगा जिसकी वजह से वो औलाद पैदा नहीं कर पाएगी, बेबी पैदा करने में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बार बार प्रेगनेंसी ज़ाया हो सकती है। और मर्द के हाथ में हो तो उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बहुत बढ़ सकता है, वो गलत औरतों के साथ तल्कात बना सकता है, औरत भी गलत गलत रस्तों की तरफ निकल सकती है अगर उसके हाथ में जहाँ पर काला तिल है तो, क्योंकि औरत और मर्द जो है दोनों बेरा रवि का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं और जिनसी अज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना मर्द औरत को करना पड़ सकता है।